Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur. जय श्री श्री राधारस बिहारी जी की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। Hare Krishna. So I'm very happy to be here amongst all of you. It's called GGP base. What is meant by GGP?
Ghasidas Vishwavidyalaya. This is a central university of Okay. Okay, Guru Ghasidas. Okay, very nice. I said Guru and Gauranga. Very nice. We were thinking about the name. This will be nice. Okay. Okay. So once a devotee was there, he went to his Guru and asked him a very wonderful question. He said, Guru Maharaj, human life is very short. Please give me the secret of all the scriptures. Bhajan Rahasya. What is a Rahasya? What is the secret hidden in all the scriptures? So Guru was very learned. Guru said, okay, my dear disciple, there's only one secret. Chant the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you, Guru Maharaj. Thank you, thank you. You made my life successful. Thank you. He goes out. And he goes out. He goes to the banks of the river. And he said, washermen. They were washing clothes. And while they were washing clothes, they were chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. अरे आप धोबे कपड़े धोते हुए हरि नाम ले रहे हैं, ये कौन सा सीक्रेट है? I was confused. Again he goes forward. He enters the streets of the village. Some young girls were playing, and while playing they were lifting the gobar, you know. And by lifting the gobar they were chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. This is not good. My Guru Maharaj has cheated. Maybe I'm not so sincere. I should go back to the ashram and ask Guru Maharaj, what is this? What kind of secret is this? Dhobi is chanting. These illiterate village girls are chanting. How can it be a secret? Say Rickshawala. Yes. Let's go to the ashram. Yes, sir. Rickshawala, lean, thin fellow, very poor fellow, barefooted, is driving the rickshaw and chanting Hare Krishna. Now it's too much now. Rickshawala also chanting Hare Krishna. So he goes to his Guru. Guru Maharaj, what is this? If I'm not so sincere, please tell me straightforward. You're saying this is a secret. Everyone knows this secret. Then what kind of secret is this? Guru Maharaj said, okay. From his bag, he takes out one diamond. And this is the diamond. Go to all these people and ask what value they can give for this diamond. Okay. He takes this diamond, goes to those washermen. Hey, washerman, कितना वैल्यू देगा? ठीक है, कपड़े धोने का काम आएगा. You don't know his value. यहाँ पे छोटे बच्चों के पास जाते हैं, गर्ल्स वो प्लेइंग, ए बच्चे यहाँ पे कितना वैल्यू देंगे? गोबर उठाएंगे मैंने कॉल दैट रिक्शा वाला क्या है मालूम है, क्या कितना वैल्यू दोगे? अच्छा सख्त है, रोज रिक्शा चलाता हूँ, पैर से धोऊंगा मैं. इट टेक्स इट बैक. कोई वैल्यू नहीं जाता. ही कम्स बैक. गुरु महाराज says, yes, what is the value? They don't know its value. Guru says, yes, this is the thing. Everyone is chanting Hare Krishna, but only those will know its value, who know its glories. How glorious is chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Okay, so we all chant holy name, but it's very, very essential to discuss the glories of the holy name, the science of chanting of the holy name, the benefits we get, how to develop faith in chanting of the holy name. It looks very simple. It looks very simple. You just move two lips and tongue, and you get all perfection. How is this possible? Hare Nam, eva kevalam. Kalau naste, gati ranyatha. So much stress. 3 times positive, 3 times negative. Hare Nam, eva kevalam. Only chanting of the holy name. Kalau, naste. No other means. Gati ranyatha. So it will be difficult to comprehend if it is totally English. अच्छा. Mix or even pure Hindi or mix Hindi. ठीक है यार, ठीक है. उर्दू भी डालूंगा बीच में. ठीक है, चलेगा उर्दू. ठीक है, अभी तक समझ आया कुछ जो नहीं है? ओपन सीक्रेट समझ आ गया ना? तो हरिनाम, केवल हरिनाम, और कोई उपाय नहीं. तो इतना महत्वपूर्ण है हरिनाम का जप करना. केवल सनातन धर्म में ही नहीं, हर धर्म में आप लेंगे. ईसाई धर्म में क्या बोलते हैं? Thou shalt chant the holy name of the Lord. वो अपनी रोजरी बीट पे चैंटिंग करते हैं. इवन जो इस्लाम है वो क्या पढ़ते हैं? नमाज क्या है? हाँ, they are chanting the 99 names of the Lord. जोर से बुलाते हैं भगवान के नाम को. चाहे आप गुरबाणी भी लेंगे तो गुरबाणी में सिख भी लोग क्या करते हैं? भगवान के नाम. आप गुरबाणी उठाएंगे, पूरी गुरबाणी भगवान के नाम से भरी हुई है. गोविंद, राम, कृष्ण, मालूम है आपको? वो बोलते हैं वाहे गुरु का मतलब कोई बताएगा? मालूम कैसे हो? वाहे गुरु, वा से वासुदेव, हा से हरि, जा से गोविंद, रा से राम. पूरा गुरु ग्रंथ साहिब इन्हीं नामों से भरा हुआ है.
किसी ने मुझे डाटा दिया था, इतने वासुदेव हैं, इतने गोविंद हैं, इतने हरि हैं, इतने राम हैं। तो हर तथाकथित धर्म में भगवान के नाम उच्चारण की ही महिमा है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। कृते अध्याय ते विष्णु तेताय जतो मुखी द्वापरे परिचर्याम कलौ तदहरि कीर्तनात्। सतयुग में भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता था? मेडिटेशन करके। और सतयुग में मनुष्य की आयु कितनी होती थी? 1,00,000 साल। और क्या मेथड होता था? जंगल में चले जाओ, मेडिटेशन करो, और तब तक वापस मत आओ जब तक भगवान के दर्शन ना हो जाए। ऐसा नहीं 10 मिनट मेडिटेशन के फिर टीवी ऑन कर दिया, स्मार्टफोन में देखने लगे, वैसा मेडिटेशन नहीं। वो मेडिटेशन के नाम पे दुख है। मेडिटेशन कैसा होता था? भगवान गीता में बताते हैं 6ठे अध्याय में, घर छोड़ के जाओ, जंगल में जाओ, पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करो, पीठ सीधी रखो, सीधा बैठो, फोकस करो, है ना, शांत स्थान हो। पॉसिबल है आजकल? आप हिमालय में भी चलेंगे, ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज आएगी, कहीं पे भी शांति नहीं है, और आप घर छोड़ के नहीं जा सकते, है ना, वेरी वेरी डिफिकल्ट। और एज भी हमारी इतनी ज्यादा नहीं है। ओके, फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में कितनी आयु रहेगी मनुष्य की? 10,000 साल। व्हाट वाज द रिकमेंडेड मेथड? बड़े बड़े यज्ञ करना। यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, शुद्ध सामग्री चाहिए। आजकल ब्राह्मण भी बुरा मत माने, शुद्ध नहीं है, हम बाई कास्ट नहीं कह रहे। शुद्ध ब्राह्मण ऐसे होते थे, मंत्रों के उच्चारण से अग्नि प्रज्वलित कर देते थे, है ना। आजकल अग्नि प्रज्वलित करने के लिए जेब से माचिस निकालते हैं, साथ में बीड़ी भी गिरती है ना। तो हम शुद्ध यज्ञ भी नहीं कर सकते, सामग्री भी शुद्ध नहीं है, घी भी शुद्ध नहीं है ना। फिर आया द्वापर युग। द्वापर में मनुष्य की आयु कितनी रह गई? 1,000 वर्ष। 1,000 वर्ष में मनुष्य का क्या रिकमेंडेड मेथड है? बड़े बड़े मंदिर बनाना, भगवान को बड़ी बड़ी भेंट देना। कर सकते हैं आज? नहीं। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, बड़ी मुश्किल से, कोई लोग मुश्किल से दान देते हैं ना, सबसे फटा हुआ नोट जो कहीं नहीं चलता। ओके, फिर आया कलयुग। कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी है? देखा आपने 100 साल का कोई व्यक्ति? कोई नहीं देखा। कभी भी मृत्यु आ सकती है। इट रिमाइंड्स मी, हम लोग MNIT में प्रचार करते थे, MNIT प्रयागराज, वहाँ एक लड़का था अनुज टंडन, ही वाज अ टॉपर, 10 पॉइंटर था अपने कॉलेज में, और बाद में पास आउट किया। उसकी C. कंपनी में जॉब लगी थी, दिल्ली नोएडा में जॉब करता था, और उसने IAS के लिए तैयारी किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेंस क्लियर कर, और मेडिकल भी क्लियर हो। बहुत अच्छी बात है। लखनऊ का रहने वाला था, घर वालों को बुलाया, पार्टी हो रही थी। पार्टी करते करते अचानक वो गिर गया नीचे, हॉस्पिटल में ले गए, डिक्लेयर्ड डेड। 24 साल का लड़का था। और अभी हैरानी की बात है, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, मेडिकल चेकअप हुआ, मेडिकल चेकअप में ठीक है, और बोले हार्ट फेल हो गया। सो लाइफ इज सो अनसर्टेन। 24 साल का, एकदम हाईली इंटेलिजेंट, इतना अच्छा बच्चा था वो। और मैं हैरान हूँ, जब मुझे न्यूज पहुंचा, आई वाज सो शॉक्ड। अभी उनको मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया था, सब क्लियर हो गया, सब ज्वाइन करने वाला है, सब कुछ आ गया था। गॉड। सो कलयुग में कुछ पता नहीं मृत्यु कब आ जाए। तो ना हम मेडिटेशन कर सकते हैं जंगल में जाके, ना हम यज्ञ कर सकते हैं, ना हम क्या कर सकते हैं, भगवान को बड़ी बड़ी भेंटें दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा। तो हरि नाम है क्या? और भगवान के बहुत नाम है, भगवान के अनगिनत नाम है, तो कौन से नाम का उच्चारण करें? तो ये पूछने के लिए ब्रह्म नारद पुराण में आता है कि कली संतरणों प्रश्न क्षमा करें, नारद मुनि जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। जो संत लोग होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो हमेशा दूसरों के बारे में चिंता करते हैं। वैष्णव पर दुखे दुखी। एक आम व्यक्ति होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो अपने बारे में सोचता रहता है कि कब मुझे कंफर्ट मिलेगा, कब मुझे ये मिलेगा। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, उसकी पहचान क्या है? वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, दूसरों के बारे में सोचेगा। तो नारद मुनि जी आराम से भगवान की भक्ति में है, लेकिन जो जितना अच्छा भक्त होगा, वो सोचेगा मैं दूसरों को कैसे सुखी बनाऊं। और कलयुग आने वाला है, बोले कलयुग में बिलासपुर के लड़के तो बेचारे बहुत परेशान होंगे। उनको कैसे उनका उद्धार होगा? तो ब्रह्मा जी से पूछा कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने बताया, इति षोडशगम नामनम कलिकन्वशनाशनम
सर्वेदेषु न तो परतरपाय दृश्यते। ये जो 16 शब्दों का नाम है कली के सारे क्लेशों का नाश करने वाला है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो 16 शब्द क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कली के सारे क्लेशों का सत्यानाश कर देगा, सभी क्लेशों को खत्म कर देगा। द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम। कैन यू बिलीव इट? विश्वास नहीं होता ना? ऐसे कैसे हो सकता है? जितनी समस्याएं हैं, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इंटरनेशनल, और कौन कौन सी हैं? प्रोफेशनल, पर्सनल और पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिकल और कम्युनल, जियोग्राफिकल, एनवायरमेंटल, इमोशनल, हो सभी सभी समस्याओं का समाधान। क्या बात हुई? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। इसका मतलब क्या? अच्छा, तो मैं हरे कृष्ण मोहम्मद का जप करूंगा, मैं पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, मेरे मार्क्स आ जाएंगे? बताइए, ऐसा होगा क्या? अच्छा, मैं हरे कृष्ण मोहम्मद का जप करूँ, मेरे स्पेक्टिकल्स उतर जाएगा, आपने बोला मेडिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्व हो जाएगा। मैं हरे कृष्ण मोहम्मद करूँ, मेरा डाइजेशन ठीक हो जाएगा? ऐसा क्या मतलब? मैन विल चैंट द होली नेम, क्या होगा? will take out, will attack at the root of all the problems. बाकी हम जो इलाज करते हैं वो सिम्टोमेटिक इलाज है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। नहीं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं प्रॉब्लम्स का कारण क्या है। कृष्ण भोलिया जी अनादि बहिमुखे, अते माया तार दे संसार दुखे। कृष्ण भूलिया जी, जब हम कृष्ण को भूलते हैं, कब भूले हैं? अनादि काल से, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। तब क्या है? कृष्ण भूलिया जीव अनादि वही मुखे, अते माया तार दे संसार दुखे। तभी संसार में उस जीव को क्या दिए जाते हैं? दुख दिए जाते हैं। द मोमेंट वी एंटर इन द वूम ऑफ आवर मदर, जैसे ही कोई जीव अपने माँ के घर में प्रवेश करता है, दुखों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। आप जितना मर्जी प्रयास कर लें इन दुखों को काउंटर करने के लिए, एक दुख को काउंटर करेंगे जो सोल्यूशन इटसेल्फ बिकम अ प्रॉब्लम। ये प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि एक समस्या का समाधान करने के लिए हम कोई सॉल्यूशन करते हैं, वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है? कोई आप दे सकते हैं एग्जांपल आज के प्रेजेंट टाइम से कि समस्या के समाधान के लिए समाधान ही प्रॉब्लम बन गया? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बीमारी करते हैं, वो साइड इफेक्ट हो जाते हैं। मालूम है, जो पेशेंट है उसकी डेथ हॉस्पिटल में होती है उस बीमारी से नहीं जिसके लिए एडमिट हुआ था, कुछ और हो जाता है उसको। यस, और कुछ? किसी को एडिक्ट हो, एडिक्ट से छूटने का कोई और एडिक्ट। वेरी गुड। एक एडिक्शन से छुटकाने में दूसरा एडिक्शन दिया जाता है। और कोई? आप चारों तरफ देखेंगे आपको यही समझ दिखाई। और बताओ। ये हैबिट के बारे में भी कुछ खराब हैबिट्स भी हैं। देखिए, आप लोग तो अभी सब यंग हैं, सो व्हेन आई वाज यंग इन द 80s, प्लास्टिक आया था, प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ था, है ना? इट वाज अ रिवॉल्यूशन कि प्लास्टिक को क्या कमाल कर दिया। सारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आ गया। जो डैशबोर्ड से सब प्लास्टिक के बनते थे, सारे पार्ट्स प्लास्टिक के बन रहे हैं। रिवॉल्यूशन, हर चीज इतनी हल्की हो गई, एफिशिएंसी बढ़ गया, कमाल हो गया। और आज प्लास्टिक संसार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाउ टू डिस्पोज ऑफ दिस प्लास्टिक, नॉन डिग्रेडेबल। तो जो सोल्यूशन है वही प्रॉब्लम बन जाता है। क्यों? रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है? अवर्जन, कृष्ण को भूलना। इसको याद रखिए। समस्याओं की जड़ क्या है? भगवान से दूर होना। ये समस्याओं की जड़ है। तो हरे कृष्ण महामंत्र से क्या सोल्यूशन हो जाएगा? जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं। लाइक जब हम किसी दोस्त से, हमें मित्र से बात करनी है, हम उसको फोन करते हैं। फोन करते ही हमारी बातचीत शुरू हो जाती है। आजकल वीडियो कॉल भी हो जाता है ना? सो वी कैन सी ईच अदर, वी कैन टॉक टू ईच अदर, द रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड।
Similarly, when we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare, एक कनेक्शन बनता है। आप में से कितने भक्तों को लगता है जैसे आप चैंटिंग करते हैं, यू फील सम कनेक्शन? करते हैं ना? अब देखिए, कईयों को क्यों नहीं महसूस होता? Because it is heart to heart connection. I request all of you, please raise your hands and right from the deepest core of your heart, बिल्कुल हृदय के गहराई से भगवान को पूरी श्रद्धा से पुकारिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा महसूस हुआ आपको? चलेगा ना? क्यों ऐसा क्यों है? चलो लेट्स स्टार्ट विद नरेंद्र मोदी। उससे कनेक्शन होगा। कुछ साल पहले 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। अच्छे व्यक्ति हैं वो। तो उनका एक फैन था, बोले आज मैं नरेंद्र मोदी के 1 लाख नामों का जप करूंगा। सारा सोशल मीडिया आ गया, वो शुरू हुआ नरेंद्र मोदी। धीरे धीरे दोपहर तक उसका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। शाम तक आकर उसकी बुरी हालत हो गई। सब ने बोला प्लीज बोलो, थोड़े से नाम लगे, बोलो। उसकी बुरी हालत हो गई, नरेंद्र मोदी। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जितना आप हरिनाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। You feel more energetic, you feel more enthusiastic, you feel more connected. ऐसा क्यों? कौन बताना चाहेगा आपने से? Yes. क्योंकि वो परम सत्य है। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? सक्षम। हैं? बहुत सक्षम, वेरी गुड, बहुत सक्षम है आप उत्तर देने। वेरी गुड। परम सत्य है, ठीक है, मान तो लिया परम सत्य है, लेकिन परम सत्य है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी बात ठीक है, रूट में आपने बोला, लेकिन फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है करके, मतलब हरे कृष्ण, मतलब कि इसको यूनिवर्सल बहुत पहले भी था और ये आज भी है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ तो है, लेकिन एक साधारण नाम और इस नाम में क्या अंतर है? हैं? प्रेम है इसमें, प्रेम भी है, लेकिन क्यों इसके अंदर प्रेम है भाई? फादर ऑफ यूनिवर्स है तो जब हम हाँ एक करके हाथ खड़े करके जब हम पूरे अंदर से सत्य से, मतलब कि जैसे मन से पूरा माइंड से उस चीज में लगाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे अंदर से एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। वो आनंद हमें बहुत ज्यादा शक्ति करता है, ज्यादा मोटिवेट करता है उसी। बहुत अच्छी बात है, आनंद से आनंद, बहुत अच्छी बात है, ये भी ठीक है, लेकिन हम अंश है। वेरी गुड, ये भी बात सही है, अंश है। जैसे मैं अपने पिताजी का ध्यान लगाऊं, है ना, और पिताजी का नाम बोलूं तो इतना आनंद आएगा, उनका अंश उस संसार में तो। मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान से ज्यादा शक्ति उनके नाम पे होती है। हाँ, हरि वाह, वेरी गुड। भगवान अपने नाम के पीछे पीछे चलते हैं। हाँ, अभिन्नत्व नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, ये बात है। तो आपने बोला है परम सत्य, तो परम सत्य का अर्थ है भगवान, भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान की कथा, भगवान के विग्रह, इन सब में कोई अंतर नहीं है ना। तो जैसे हम बोल रहे हैं कृष्णा, तो हम कृष्ण का संग कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं महात्मा गांधी, हम उनका संग नहीं कर रहे। और समझ रहे बात को? हम किसी और व्यक्ति का भी नाम लें, हम उसका संग नहीं कर रहे। इस व्यक्ति में हो सकता है कोई भिखारी हो, सब पूछे आपका नाम क्या है, बोले अमीर चंद। नाम उसका अमीर चंद है, बेचारा भिखारी, भीख मांगे, है ना। कोई हो सकता है अंधा हो, बोले आपका नाम, बोले कमल नयन, है ना। उसके में उसके नाम में बहुत अंतर है। अगर मैं शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, मैं बोलूं पानी पानी पानी, पानी पानी बोलने से क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? प्यास और बढ़ेगी। मैं बोलूंगा पैसा 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 बोलने से क्या मैं अमीर हो जाऊंगा? नहीं। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने से मैं राधा रानी और कृष्ण का संग कर रहा हूं। तभी तो इसमें एक डिवाइन एनर्जी है।
एक दिव्य शक्ति है। आप जितना इसका जब कलिए आप थकेंगे नहीं, आप और शक्ति महसूस होंगे, है ना। आपको और आनंद आएगा। क्यों? भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। और भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा कृपालु है। जो भगवान का नाम है वो भगवान से भी ज्यादा कृपालु है। देखिए, भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं अपने विग्रह के रूप में। विग्रह जानते हैं? डीटीज। उन डीटीज को वर्शिप करने के लिए, डीटीज को छूने के लिए कुछ योग्यता चाहिए। आपको अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। आप देखते हैं मंदिर में जाते हैं, हमारे हर कोई मंदिर के आल्टर में नहीं घुस सकता। उसको दीक्षा लेनी होती है, उसको बहुत से नियमों का पालन करना होता है, तब जाके वो भगवान को छू पाता है। लेकिन हरि नाम कोई भी ले सकता है। नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, इट इज मोर मर्सीफुल। आप बहुत पाप भी कर रहे हैं तब भी आप हरि नाम ले सकते हैं। आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु की कथा में 2 पापी लोग थे, उन्होंने भगवान का नाम लिया और शुद्ध हो गया ना। इसी ढंग से आप उनको देखते हैं, वाल्मीकि की कथा सुनते हैं ना। वाल्मीकि पहले कौन थे? रत्नाकर डाकू थे। तो नारद मुनि उनसे मिले और नारद मुनि बोला, क्यों इतना मारपीट करते हो? बोले, घर चलाता हूँ। बोले, अपनी पत्नी के लिए? जाओ अपनी पत्नी से पूछो, इतनी मारपीट करते हो, क्या पत्नी आपके कर्मों का फल उठाएगी? बोले, क्यों नहीं उठाएगी, पता करो जाके। तो रत्नाकर डाकू जाते हैं, अपनी पत्नी से पूछते हैं, भाई आपके लिए सब कुछ करता हूँ, मेरे पापों की भागी बनोगी? बोले, मैं क्यों बनोगे, वाई शुड आई, ये तो आपकी कर्तव्य है। तो उसकी आंखें खुलती हैं, वापस आता है नारद मुनि के पास, मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत लोगों को मार दिया, बहुत पाप कर दिए। तो नारद मुनि क्या बोलते हैं? बोलो राम राम बोलो। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए थी कि अरे पापी व्यक्ति भगवान का नाम कैसे ले सकते हैं, नहीं, बोलो राम राम बोलो। लेकिन वो इतना पापी था, उसकी जीवा में भगवान का नाम ही नहीं आ रहा था। उसको बोलने की आदत थी मरा मरा। तो नारद मुनि बहुत इंटेलिजेंट थे, बोले कोई बात नहीं, मरा मरा बोलो। मरा 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 से क्या हो गया? राम राम राम। तो पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान का नाम ले सकता है, लेकिन भगवान के विग्रह को छूने के लिए बहुत योग्यताएं चाहिए। इसलिए भगवान से भी ज्यादा कृपालु कौन है? भगवान का नाम। इसीलिए भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। ओके, तो हमने चर्चा की कि भगवान का नाम क्या है। ये दिव्य है, ये संसार का नाम नहीं है, ये हमेशा शुद्ध रहता है और हमें भी शुद्ध करता है। और ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बताया कि ये सनातन है, ऐसा नहीं है कि सतयुग में कोई भगवान का नाम लेगा तो उसको प्रभावशाली नहीं होगा। भगवान का नाम हमेशा ही प्रभावशाली है, लेकिन जो रिकमेंडेड मेथड है, क्योंकि सतयुग में लोगों की आयु ज्यादा होती थी, लोग बहुत तपस्वी होते थे, तो वो प्रेफर करते थे कि हम क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। उनके पास ऑप्शन होता था हरि नाम लेने का। बोले ये तो बड़ा आसान है, हमें कुछ हमारे स्टैंडर्ड की बात बताओ। तो इस ढंग से ओके। तो अब हम चर्चा करते हैं कि हरि नाम के क्या क्या लाभ है, हमें जप क्यों करना चाहिए। तो अब बताइए, सबसे पहला फायदा तो हम बता चुके हैं कि हरि नाम का जप क्यों करना चाहिए। सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं इससे? हाँ, सभी समस्याओं के रूट कॉज पे से हमारा भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है। तो सबसे पहला कारण ये है कि हमें हरिनाम लेना चाहिए। दूसरा, जितना हम हरिनाम लेंगे हमारा हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध करने से क्या लाभ होगा? हृदय शुद्ध करने का मतलब क्या है? आप में से किसी भक्त को लगता है कि उसके हृदय में कुछ गंदगी है? पापों को धोना। चलो पापों को धो दिया, उसके बाद हृदय साफ हो जाएगा। कौन कौन सी गंदगी है हमारे हृदय में? तो एंजियोग्राफी कराई है किसी ने? हाँ, ये सब भरा हुआ है। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बताना, जिसके हृदय में काम है, क्रोध है, द्वेष है, वो कभी खुश रह सकता है? नहीं। सोचा कभी रह सकता है? कभी देखा क्रोधी व्यक्ति खुश हो, खुशी खुशी में क्रोध कर रहा है? कभी देखा जिसके अंदर से द्वेष हो रहा है, जल रहा है और वो खुश है? फिर भी हम देखो बोलते हाउ आर यू, आई एम फाइन। अंदर काम भरा पड़ा है, क्रोध भरा पड़ा है, द्वेष भरा पड़ा है, और हम बोलते हैं एक दूसरे को आई एम फाइन। झूठा है कि नहीं? सच बताओ, सच्चाई का सामना करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो जब तक ये हृदय से नहीं जाएंगे कभी हम खुश रह सकते हैं? और हम सब खुश रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते? हाँ, तो खुश रहने के लिए ये बहुत विशेष बात है। कोई आपको एक ज्ञान किसी स्कूल कॉलेज में नहीं देगा।
आज के लोग समझते हैं खुश रहना तो क्या करो, क्यों पढ़ाई करो भाई? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमा के क्या करोगे? डिजायर कौन कौन सी? हाँ, अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी, यू नो विल हैव ऑल गुड वाइफ, गुड वेल्थ, सब कुछ भी ले लेंगे। अच्छा ले लीजिए, इज इट ए गारंटी फॉर हैप्पीनेस? नो। क्यों क्यों नहीं, हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल रही? अभी तो बोला काम क्रोध, हाँ, हृदय शुद्ध नहीं हो रहा। ये बात को समझिए, मनुष्य जीवन हृदय शुद्ध करने के लिए मिला है। हमारे दो प्रकार के शरीर हैं, एक ग्रॉस बॉडी और एक सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी तो हम रोज नहाते हैं, इतना तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ। हम रोज स्नान करते हैं, अपनी ग्रॉस बॉडी को साफ सुथरा करते हैं। यस, कंफर्म्ड, वेरी गुड। कई बार हॉस्टल में लोग नहाते भी नहीं है, मालूम है। संडे के संडे है ना, तो आप तो सब अच्छे बच्चे हैं, नहाते होंगे। तो लेकिन ये बताइए, आजकल तो पशुओं को भी नहाया जाता है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में आएंगे तो डॉग्स के लिए भी ब्यूटी पार्लर्स हैं, बड़ा बढ़िया उनको टिप टॉप रखा जाता है, अलग शैम्पूज हैं, सब कुछ है। तो ग्रॉस बॉडी को तो पशु भी धो लेते हैं, मनुष्य जीवन मिला है किसके लिए? कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। मनुष्य जीवन मिला किसके लिए? सटल बॉडी को धोने के लिए, सटल बॉडी को साफ करने के लिए। अगर मनुष्य जीवन पा के हमने सटल बॉडी को साफ नहीं किया तो हमारे और पशु में कोई अंतर नहीं। आज पूरे लोग में जिम में जाते हैं, सब अपनी ग्रॉस बॉडी को बढ़िया बना रहे हैं, हैंडसम बना रहे हैं, लेकिन असली ब्यूटी किसकी है? सटल बॉडी की। जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा हम खुश होंगे और दूसरों को भी खुशियां बांटेंगे। जितना हमारा हृदय दूषित होगा खुद भी दुखी रहेंगे और दूसरों को भी दुखी बनाएंगे। तो ये हृदय को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे हृदय शुद्ध हो जाता है इससे? क्यों हृदय शुद्ध होता है हरि नाम से? मन शांत होता है। शांत क्यों होता है? हर चीज का कारण होना चाहिए। आपको जब कन्विक्शन होगा तभी आप करेंगे कि मैं हरि नाम ले रहा हूं, मेरा हृदय कैसे शुद्ध हो गया। भगवान का संग प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होती है इससे। यस, क्योंकि हमने बोला भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम भगवान का संग करते हैं, हरि नाम करने का अर्थ क्या है? भगवान का हम संग कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, माय गॉड, मेरी क्या योग्यता है और मैं भगवान का संग कर रहा हूँ। उफ, अभी यहाँ पे कमरे में कृष्ण आ जाए, क्या रिस्पॉन्स होगा हमारा? जस्ट ऊपर आपने फोटो देखा, वो फोटो देखा किसका है? लेमिनेशन किसका है? वो राधा रास बिहारी जुहू को। तो आप लोग इतने अच्छे भक्त हैं, राधा रास ने सोचा है मैं देख के आता हूँ यहाँ बिलासपुर में कहाँ है मेरे भक्त मेरी पूजा करते हैं, यहाँ आ जाए। क्या करोगे आप? क्या नाम क्या है आपका? अंशुल। अंशुल, आप क्या करोगे? राधा रास बिहारी यहाँ पे आ गए, बोलो बोलो क्या? एक्सटेसी में आ जाएगा ना, नाचोगे कूदोगे मूर्छित हो जाओगे, पता नहीं क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स है, वी डोंट नो। तो हम इतने योग्य हैं कि भगवान हमारे सामने आ जाएंगे? नहीं है, लेकिन हरि नाम इतने कृपालु हैं, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी भगवान अपना संग देने को तैयार है। क्यों? बिकॉज कृष्णा इज मोर ईगर देन अस, कि हमारा संबंध बने। संबंध दो तरीके से होता है, दोनों तरफ से होता है ना, प्रेम दो तरफ से होता है। हमने भगवान को कट ऑफ कर दिया, भगवान ने कट ऑफ नहीं किया। भगवान ने अपनी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ऑन रखी हुई है। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। कृष्ण कितने अच्छे हैं बताइए, कितना टॉलरेट कर रहे हैं, हम बार बार उनको रिफ्यूज किए जा रहे हैं। कृष्ण इतने नहीं, कभी तो मानेगा, कभी तो मानेगा, कभी तो मानेगा, है ना। तो जितना हम भगवान का नाम लेंगे हम भगवान का संग कर रहे हैं, तो जैसा संग वैसा नाम, तो हमारा हृदय शुद्ध होता रहेगा। जितना हृदय शुद्ध होता जाएगा उतने हम आनंद में आते जाएंगे और हमारी सभी समस्याओं का समाधान होता जाएगा और हम दूसरों को भी खुशियां बांटेंगे। तो सबसे पहला लाभ होता है हरि नाम लेने का,
ये हमें असली आनंद देता है। क्यों? कि ये हमारे हृदय को शुद्ध करता है। अब इसके साथ साथ, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान के संग से और क्या क्या लाभ होते हैं? हरिनाम लेते हैं, वी बिकम फियरलेस, हमारा डर खत्म हो जाता है। हमारे एक आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, नाम सुना आपने? भक्ति विनोद ठाकुर जब बचपन में थे तो बहुत अमीर घर से थे, उनके बहुत बड़े बड़े गार्डन्स थे, सेब के गार्डन्स थे, लेकिन उसमें था एक ऐसा प्रसिद्ध था कि एक सेब के पेड़ में भूत रहता था। उनकी बड़ी इच्छा थी, मैंने जाना है, तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि मेरे को सेब खाना है, सेब उसमें भूत रहता है, क्या करूं? बोले कोई बात नहीं, अब भगवान का नाम लो, भूत भाग जाएगा। अच्छा, बोले ये पक्की बात है? बोले पक्की बात है। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, मैंने बचपन में राम 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 कहना शुरू कर दिया, तो मैंने प्रेयर प्रैक्टिस की, छोटे से बच्चे थे, मैं रात को अंधेरे में गली में निकल जाता था, राम 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 कहते, मैं डर नहीं लगता। जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो राम 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 कहते मैं रात को बगीचे में चला गया और पेड़ पे चढ़ गया, जिस पेड़ में भूत था, और राम 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 कहते सेब तोड़ के नीचे ले आया और मैं कुछ नहीं आया। बोले तब से मेरा हरिनाम में श्रद्धा बढ़ गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। So, पहला फायदा, इट प्यूरिफाइज अवर हार्ट। दूसरा फायदा, इट गिव्स अस रियल ब्लिस। तीसरा लाभ है, इट मेक्स मी फियरलेस। देखिए प्रभुपाद जी कितने फियरलेस हैं, सोचिए आप, प्रभुपाद जी कितनी एज में गए थे विदेश में? किसी आपने देखा 70 साल की आयु में कोई व्यक्ति नया मिशन शुरू कर रहा है? 70 साल में लोग रिटायर हो चुके होते हैं, बीमार पड़ चुके होते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। प्रभुपाद इंडिपेंडेंटली कितने दूर चले गए, परदेश में इतनी दूर, वहां जाके नया मिशन शुरू कर दिया। 108 मंदिर बना दिए, माय गॉड, 108 मंदिर विदेशों में, क्या शक्ति है, एकदम फियरलेसली। ओके, तो जितना हम हरिनाम लेंगे हम फियरलेस हो जाएंगे, राइट। चौथा फायदा है, जितना हम हरिनाम लेंगे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। हम लोग आज के इस कॉम्पिटेटिव युग में बहुत कॉम्प्लेक्स में घिरे रहते हैं। किसी को इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, किसी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, किसी को ये हेजिटेशन, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ। तरह तरह की हमारी इनसिक्योरिटीज हैं, तरह तरह की हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। जैसे ही हरिनाम लेते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। क्यों? प्रभु कसम, भगवान आपके साथ है, फिर किस बात की चिंता। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। हमारे पंजाबी बाग मंदिर में एक लड़का आता था, वो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो बचपन से ही हकलाता था, हकलाना जानते हैं, वो स्टैमर करता था और हर लोग उसके मजाक उड़ाते थे। कोई उसका दोस्त नहीं था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था, बड़ा शर्माता था बेचारा, बिकॉज इंटेलिजेंट था और लेकिन हकलाता था तो कोई इसको तो आ गया, मंदिर में आ गया हमारे, और ऐसे हमारे क्लासेस अटेंड करने लगा। क्लासेस में हम पार्टिसिपेट करने लगा, उसको अच्छे दोस्त मिले। क्योंकि भक्तों के संग में क्या होता है, जो डिवोटीज होते हैं दे आर सेल्फलेस, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया उसको, किसी ने उसको जज नहीं किया, अरे हकलाता है उसका मजाक नहीं उड़ाया। ओके, सो डिवोटीज ने उसको प्रेम दिया, उसको शेल्टर दिया। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया कि फिर क्या हुआ, एक ड्रामा कर रहे थे हम 31 दिसंबर को पूरी कम्युनिटी के लिए। पूरी कम्युनिटी में 2000 लोग हैं, इतना बड़ा स्टेज है, उसमें वो ड्रामा कर रहे हैं। तो उसने अपने घर वालों को बताया आज मैं ड्रामा में भाग लूंगा। तो घर वाले सोच रहे ड्रामा में ही हकला के ही बोले यही रोल मिला होगा तेरे को, आगे देखने को बैठा। ड्रामा में देखा धड़ाधड़ डायलॉग बोल रहा है वो, तो फिर घर वालों की आंखों में आंसू आ गए, हमारा बेटा है क्या? और गले लगा रहे, बेटा कैसे हो गया? ये सब हरिनाम का और भक्तों के संग का प्रभाव है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अब उसने दीक्षा भी ले ली है और वो हमारा नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। बोला प्रभु जी अब बोलना नहीं छोड़ूंगा। क्या है, राधापति कन्हई प्रभु, राधापति कन्हई उनका नाम पड़ा है ना। बोले अब बोलना नहीं छोड़ूंगा, बहुत साल हो गए मैं चुप रहा। वहाँ वो हैदराबाद में जॉब भी करता है, पहले पंजाबी में था, उसकी हैदराबाद में जॉब लगी है, धड़ाधड़ बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है, फटाफट बोलता है ऐसा। बोले मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको बताऊंगा कि हरि नाम में इतनी वैल्यू। मैंने अपना महसूस किया है, मेरे इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। ओके, सो कौन कौन से लाभ बताए आपको? पहला क्या था?
Purifies. purify your heart. Second, it gives you real bliss. Third, makes you fearless. Fourth, self-confidence. It makes you self-confidence. Okay. Or number 5, it gives you strength to tolerate temptations. इस संसार में इतनी टेम्पटेशंस है, जितना आप हरिनाम कर जप करोगे आपको शक्ति मिलेगी इन टेम्पटेशंस को करने की। आजकल सबसे बड़ी टेम्पटेशन क्या है? स्मार्टफोन। खोलते कहाँ हैं, पहुंचते कहाँ चले जाते हैं। लेकिन अगर आप हरि नाम को ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप इन टेम्पटेशंस को टॉलरेट कर पाओगे। यू विल बी मोर कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग, सेइंग नो टू माया। आप सबने हरिदास ठाकुर जी की स्टोरी सुनी है। आप जानते हैं हरिदास ठाकुर जी हमारे एक आचार्य हैं, इनका नाम है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जी का जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था चैतन्य महाप्रभु के समय, है ना। और हरिदास ठाकुर जी को जब चैतन्य महाप्रभु से उनको इतना प्रेम मिला, वो एक दिन में 192 माला करते थे। कितनी? 192। एक महीने में नहीं, एक वीक में नहीं, एवरी डे। थे किस परिवार से? मुसलमान परिवार से। लेकिन उनको बोल दिया नामाचार्य, तो वो इतने प्रसिद्ध हो गए कि एक जो गांव के लोग थे उनसे जेलस करने लगे, यार इतना प्रसिद्ध कैसे हो सकते हैं। तो एक वैश्या को उन्होंने भेजा कि वैश्या क्या करेगी, इनका फॉल डाउन करा देगी। तो हरिदास ठाकुर समझ गए थे वैश्या किस लिए आई है। तो हरिदास ठाकुर बैठे थे, वैश्या आई, वैश्या ने उनको सिड्यूस करने का प्रयास किया। हरिदास ठाकुर बोले थोड़ी मेरी माला रह गई, बाद में आपसे बात करूंगा। तो वो बैठ के उसने भी भगवान का नाम सुना। दूसरी रात आई, फिर हरिदास ठाकुर ने आज भी मेरी माला पूरी नहीं कर पाया, आपसे बाद में बात करूंगा। तीसरी रात भी आई, लेकिन जब भगवान उसने हरिदास ठाकुर के मुख से इतना शुद्ध नाम सुन रहे थे, उस वैश्या का भी हृदय बदल गया। और वैश्या ने हरिदास ठाकुर जी के चरणों में शरण ली, बता दिया कि मेरे को इस व्यक्ति ने भेजा था आपका पतन कराने के लिए। हरिदास ठाकुर बोला मुझे मालूम था, लेकिन मैं 3 दिन इसलिए रुका, मैं आपका उद्धार करना चाहता था। तो अगर हम हरि नाम लेते हैं तो हम जानते हैं, आप लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं और कई बार उसके बाद आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, जॉब करेंगे, बहुत तरह की टेम्पटेशंस होंगे और आप सबका अनुभव होगा। जितना इन टेम्पटेशन में आप फंसते हैं आपको बाद में कैसा महसूस होता है? नहीं जाना चाहिए था। यस। और क्या होता है? गिल्ट होता है, अपसेट होते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है ना, परेशान होते हैं, कितने नुकसान है, लेकिन फिर फंस जाते हैं। लेकिन इसको करने से क्या होता है, जब हरि नाम लेंगे आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, आप उसको टॉलरेट कर पाएंगे। ये कौन सा फायदा बताया हमने? बताया। फिर छठा, हरि नाम लेने से हम अपनी पुरानी आदतों से, बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल जब श्रीला प्रभुपाद जी विदेश में गए थे तो हिप्पीज से मिले थे, जानते हैं ना। तो हिप्पीज, प्रभुपाद जी चले गए थे एक न्यूयॉर्क में एक पार्क है टॉम्पकिन स्क्वायर पार्क, अकेले थे और संडे का दिन था, अक्टूबर का महीना था, दोपहर का समय था, 11 बजे के आसपास। प्रभुपाद ने आंखें बंद की और उस पेड़ के नीचे बैठ के कीर्तन शुरू कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ऐसा किया, प्रभुपाद ने आंखें बंद करके घंटों करते रहे। अचानक जब प्रभुपाद ने आंखें खोली तो देखा आसपास बहुत भीड़ है और सारे हिप्पीज उल्टी सीधी ड्रेस डाले हुए, कोई कांगो बजा रहा है, कोई बांगो बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, सब नाच रहे हैं और हरे कृष्णा गा रहे हैं। प्रभुपाद खड़े हो गए और प्रभुपाद ने गाना शुरू किया, सब नाचने लगे, पूरा मीडिया आ गया, वहां पे पूरी फोटो खींच ली। ये क्या हो गया?
और ये प्रभुपाद वापस जाने लगे, सबके सब पीछे पीछे उनके चलने लगे। जैसे हमने देखा बैक पाइपर का स्टोरी आता है, सब पीछे पीछे चल रहे हैं वापस। वहां से आंदोलन शुरू हुआ। तो क्या कह रहे थे हम, किस पॉइंट पे थे? यस, उसके बाद हाँ, तो ये जो हिप्पीज थे ये सब कुछ चरस गांजा एलएसडी सब लेते थे। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा आप एलएसडी क्यों लेते हो? बोले वांट टू रिमेन हाई। प्रभुपाद बोले मैं आपको ऐसा ड्रग दूंगा रिमेन हाई फॉर एवर। बोले स्वामी जी कितने पैसे लगेंगे? बोले बिल्कुल फ्री है। ये जो एलएसडी लेते हो वापस नीचे आ जाते हो, फिर दोबारा से एलएसडी लेते हो, अब मैं आपको ऐसी ड्रग दूंगा यू रिमेन हाई फॉर एवर, यू नेवर कम डाउन। वाओ, हाउ मच? नो चार्जेस, दीजिए। क्या है मेडिसिन वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देखेंगे कि जितना आप हरि नाम लेंगे, जब हमारा हृदय शुद्ध होना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली वी डेवलप डिस्टेस्ट फॉर बैड थिंग्स। ऑटोमेटिकली। क्यों? हमें हायर टेस्ट, हमें रियल प्लेजर मिल रहा है, असली सुख मिल रहा है, तो इस छोटे सुख को हम नकार देते हैं विलिंगली। ये नहीं कि जबरदस्ती हमें रोकना पड़ता है, विलिंगली वी रिजेक्ट इट, है ना। वी आर वेरी इजीली एबल टू गिव अप आवर बैड हैबिट्स। किसी का अनुभव है यहाँ पे? किसी ने हरि नाम शुरू किया, अपनी बुरी आदत को छोड़ पाया? यस, बताइए प्रभु जी। जब से सेंटर से जुड़ा था उसके पहले ड्रिंक किया, कोई कर और फिर छोड़ दिया। चार नियम का पालन करें। अपने आप शुरू हो गया ना? अरे नहीं तो लोग नए साल में रिजोल्यूशन लेते हैं, है ना, मैं आज से दारू नहीं पीऊंगा, बस 2 घंटे के बाद फिर टूट जाता है। और किसी का अनुभव है? यस, सेम, वेरी गुड, यस, बहुत ज्यादा। आप क्या हो गया? देखते ही नहीं? कमाल है, हरि हाँ, ओनली 1 month यू से। यस, प्रभु जी कोई बुरी आदत तो नहीं थी, लेकिन अच्छी आदत और डेवलप। वेरी गुड। मैजिकल, है ना। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं प्रत्यक्ष अवगमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो भक्ति है ये प्रत्यक्ष है, ये कोई पोस्ट डेटेड चेक नहीं है, ये कोई धोखेबाजी नहीं है। आप करेंगे आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो इट हेल्प्स अस टू डेवलप गुड हैबिट्स, हेल्प्स अस टू ओवरकम आवर बैड हैबिट्स। ये कौन था? नंबर 6 था। नंबर 7, the more we chant the holy name, more we develop faith. हमारी श्रद्धा में विकास होता है ना। श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा क्यों जरूरी है बताइए? हाँ, क्यों जरूरी है? कलयुग में भगवान के साक्षात दर्शन तो होंगे नहीं, तो श्रद्धा के माध्यम से भगवान से हम जुड़ सकते हैं। वेरी गुड, श्रद्धा से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। क्योंकि प्रभु जी भगवान जानने की चीज नहीं, भगवान मानने की चीज है। तो भगवान मानने का जानने के लिए नहीं है, नहीं, जानने का नहीं, भगवान मानने का हुआ नहीं, मानने के लिए भी है, जानने के लिए भी है, दोनों है। यस, ज्ञान के श्रद्धावान लगते ज्ञान, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर सहितेन्द्रिय ज्ञान मतलब परम शांति अच्छी गच्छति। ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से हम ये पता चलेगा कि जानेंगे, इसके अलावा कुछ है नहीं, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो फिर क्या करें? हम सुंदर समझ पाएंगे कि यही सत्य है। हाँ, फिर क्या करेंगे? आनंद मिल रहा है, जान के फिर उनसे प्रेम करेंगे, है ना। जानना ही लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है प्रेम करना। तो यही श्रद्धा बाद में क्या बन जाएगी? प्रेम बन जाएगी। तो इसीलिए श्रद्धा होगी तो हमें हमेशा हमारे में उत्साह रहेगा, श्रद्धा रहेगी तो हमारे में साहस रहेगा, है ना। श्रद्धा है ना, मुझे पक्का विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेंगे। प्रभुपाद जी में साहस था, तभी तो बुढ़ापे में इतनी दूर चले गए। श्रद्धा थी ना, श्रद्धा थी। और ये हरिनाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ये श्रद्धा थी। एक बारी एक अमर बाजार पत्रिका, कलकत्ता की बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, उसके मालिक थे तरुण कांति घोष। उनकी प्रभुपाद से अपॉइंटमेंट थी, तो थोड़े अपॉइंटमेंट में लेट हो गए। तो प्रभुपाद आप लेट हो गए? बोले हाँ स्वामी जी, मैं रास्ते में आ रहा था, एक योगी से मिलने गया था। वो जो योगी है उसने शरीर में कोई कपड़ा नहीं डाल रखा था, एक बस गमछा लपेटा हुआ था, पर योगी में बहुत योगिक शक्तियां थी।
प्रभुपाद ने बोला क्या योगी शक्तियां थी? बोले स्वामी जी मेरे सामने उसने हवा में ऐसा किया, सेब पकड़ा दिया मुझे, ये सेब मैं लेके आया हूँ उस योगी से। बड़ा प्रभावित था। एक प्रकार से प्रभुपाद को बताया, आप ही कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं क्या? प्रभुपाद ने बोला मेरे में ऐसे कोई योगिक शक्तियां नहीं है, मैंने तो केवल हरिनाम लिया। मैं हरिनाम लेके विदेश में गया, उसी हरिनाम से मैंने बहुत से भक्त बनाए, उसी हरिनाम से मैंने बहुत सी किताबें छपवाई, उसी हरिनाम से मैंने बहुत से फेस्टिवल्स किए, उसी हरिनाम से मैंने बहुत से मंदिर बनाए, और हर मंदिर में बहुत से सेब है। एक हरिनाम से सब कुछ हो गया। देखिए प्रभुपाद अकेले गए थे, प्रभुपाद गए मेरे में कुछ नहीं है, मेरे में केवल दो चीजें हैं, मुझे हरिनाम में विश्वास है और मुझे गुरु की आज्ञा में विश्वास है। तो अगर हमें विश्वास होगा और आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आप क्या करेंगे? आप हरिनाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमको पहले बता रहे, हम आपको इतने लाभ बता रहे हैं, पहले ही बोल दिया था। ऐसा नहीं कि हरिनाम लेंगे तो आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगे, लेकिन हम उन समस्याओं से प्रभावित नहीं होंगे। ये संसार दुखों से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है, समस्या आएंगी, लेकिन जो हरिनाम लेता है उसको समस्या प्रभावित नहीं करेंगे। और जो हरिनाम नहीं लेता वो छोटी सी समस्या से बेविल्डर हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन जो हरिनाम लेता है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, तो वो समस्याओं से प्रभावित नहीं होगा। जिस प्रकार से आप एक रिक्शा में जा रहे हो और ऐसी सड़क में जा रहे हो जिसमें बहुत गड्ढे हैं तो आपको पूरा रिक्शा हिल जाएगा, लेकिन आप बहुत सुंदर ऑडी गाड़ी में बैठे हैं, गड्ढे होंगे भी तो पता भी नहीं चलेगा, है ना। इसलिए क्या करना हमने? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम जो है ये छठा था, सातवां, आठवां लाभ है। हरि नाम हमारे हृदय के संस्कारों को बदल देता है, जला के राख कर देता है। संस्कार जानते हैं क्या होता है? वो क्या होते हैं? बचपन से फॉलो करते हैं संस्कार। गुड। बचपन से नहीं, पिछले कई जन्मों से, कई बार हम सपने देखते हैं, ऐसे ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं इस जन्म के नहीं होते हैं। देखते हैं ना, सपनों में ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जो हमने इस जन्म में उनको कभी मिले नहीं है। वो चेहरे कहाँ से आए? पिछले जन्म की छापे हैं। जब भी हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सूंघते हैं, जो छूते हैं, उसका एक इम्प्रेशन हमारे मन में पड़ जाता है, और बाद में सारे इम्प्रेशन कोलाज हो जाता है। जैसे कोलाज बनाते हैं ना आप, इंटरमिक्स होके वो सपनों में आता है। कौन कहाँ से मिल गया, कौन कहाँ से मिल गया, ऐसे सपनों में आते हैं। तो जो हम बुरी आदतों में फंसते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, समझो किसी को मदिरा पीने की आदत पड़ गई, शराब पीने की आदत पड़ गई, शराब पिया, शराब पीने का इंप्रेशन उसके चित्त पे पड़ गया। अब ये शराब पीने का इंप्रेशन इससे दोबारा शराब पिलवाएगा, फिर पिएगा, फिर और ये इंप्रेशन और गहरा हो जाएगा। जब इतना गहरा हो जाएगा उसको छोड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है। लेकिन जब हरिनाम लेते हैं तो कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, पूरे के पूरे चित्त को हमारे साफ कर देता है। इतनी आसानी से सारे संस्कार धुल जाते हैं। हरिनाम में इतनी शक्ति है। इस हृदय को, चित्त को साफ करने के लिए योगी जन कितनी तपस्या करते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन हरिनाम में इतनी शक्ति है कि हमारे सारे संस्कारों को साफ कर देता है। ये इतनी विशेष बात है। ओके, तो हरिनाम के अनंत 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 लाभ हैं। कितने लाभ गिनाए आपको? ओके, और क्या था? आपके सारे संस्कारों को बदल दिया, आपको फियरलेस बना दिया, और आपको कॉन्फिडेंस दिया, और हमने क्या बताया? आपकी श्रद्धा प्यूरिफाइज हार्ट, टॉलरेट टेम्पटेशंस के लिए, गिव्स इट बुरी आत्मा, यस यस, फियरलेस, फॉर्मेशन संस्कार, और अल्टीमेटली जो मुख्य फायदा है हरिनाम का, इट गिव्स अस कृष्ण प्रेम, है ना, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हर बुद्धिमान मनुष्य को हरिनाम लेना चाहिए। ओके, इसलिए इस कलयुग को धन्य कलयुग के आगा है। बोले कलिम संभजति आर्य गुणज्ञ सार भागिना
यस्य संकीर्तनं एव सर्वस्वार्थो उपलभ्यते। जो गुणज्ञ सारभागिना आर्य लोग हैं, आर्य मीन्स जो कि जीवन के महत्व को जानते हैं, जो जीवन के खाली सार एसेंस को पकड़ते हैं, वो कलयुग की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? इस कलयुग की पूजा क्यों करते हैं? यत्र संकीर्तनन एव सर्वस्वार्थोपलभ्यते, जहां केवल संकीर्तन करने मात्र से सारे के सारे काम हो जाते हैं। एक और मुख्य बात, जहां हम हरिनाम लेंगे, हरिनाम क्रिएट्स ऑल ऑस्पिशियसनेस, सब कुछ शुभ कर देता है। आप देख लेना, जहां पे हरिनाम होता है वहां सब कुछ शुभ हो जाता है। नारद मुनि जी ने भगवान से पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने क्या बोला? ना हम तिष्ठामि वैकुंठम योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं नारद वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहां रहता हूं। ठीक है, तो सब शुभ हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल ही परिस्थिति क्यों ना हो, बहुत मनहूस हालत हो, जैसे कहते हैं ना, अशुभ अवस्था हो, अशुभ वातावरण हो, वहां जाके आप हरिनाम में बेचिए, सब शुभ हो जाए। एक कथा याद आ गई हमें। हमारा बॉम्बे जुहू का जो मंदिर था, इसको बनाने में प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया। अब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, बहुत संघर्ष किया। एक व्यक्ति मिल गया था जिसने प्रभुपाद को बहुत धोखा देने का प्रयास किया था। उसका नाम था मिस्टर एन। उसकी अपनी प्राइवेट न्यूज़पेपर था, वो बॉम्बे का प्रीवियस एक शेरिफ था, बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था, लेकिन धोखेबाज व्यक्ति था। तो समा उसको हार्ट अटैक हो गया, हमें जमीन मिल गई, हमने मंदिर बना दिया। लेकिन उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने बड़ा धोखा तंग किया। वो भक्तों के ऊपर काला जादू करती थी, बहुत तरह से काम करती थी। तो हुआ क्या, एक बारी जुहू मंदिर में एक बहुत अमीर व्यक्ति आया, गाड़ी से उतरा, दर्शन करने गया, वापिस आया तो उसके जूते गायब थे। मेरे जूते कहाँ हैं? शोर मच गया। तो सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा, एक सामने झुग्गी था, झुग्गी में एक व्यक्ति था, उसने जूते चुराए। तो पकड़ के लाया, इसने जूते चुराया। बोले क्या करूं? बोले इसकी पिटाई करूं। तो सिक्योरिटी गार्ड उसको थोड़ा डांट पीट करने लगा। आसपास के सारे झुग्गी वाले इकट्ठे हो गए, गेट पे शोर शराबा मच गया। तो उस समय मंदिर के टेम्पल कमांडर थे, वो एक अमेरिकन थे, उनका नाम था महाबुद्धि प्रभु। वो बाहर आए, बोले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जो शोर शराबा क्यों मचा हुआ है? बोले ऐसा ऐसा हो गया। बोले लड़ाई झगड़ा मत करो, अंदर आके आराम से बात करो। तो ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ था कि जो सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में लोहे की रॉड थी बहुत बड़ी, है ना, और लड़ाई झगड़ा ऐसा हो रहा था। तो वापस जब लेके आ रहे थे तो पीछे जोर सी आवाज आई। महाबुद्धि प्रभु ने पीछे मुड़ के देखा तो देखो सिक्योरिटी गार्ड ने उस व्यक्ति का सर फोड़ दिया और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। मंदिर के अंदर एक हत्या हो गई, बहुत बड़ा कांड हो गया। तो पुलिस आ गई और जितने भक्त थे हमारे सबको जेल में डाल दिया। और अधिकांश सारे भक्त विदेशी थे, किसी की गलती नहीं है। और सारा सारा षड्यंत्र रचा गया था, उसमें मिस्टर एन की जो पत्नी थी उसने करवाया था सारा। हाथापाई में हो गया, सिक्योरिटी गार्ड भी जेल में, हमारे बड़े बड़े स्वामी जन सब जेल में। क्या करें, बड़ी बड़ी मनहूस वाली हालत है, बड़ी बदनामी वाली बात है। तो जेल में बैठे हैं सब। तो जेल के सेल में एक पोस्टर छपा हुआ था जो आधा फटा हुआ था और उसके अंदर हिंदी में कुछ लिखा था। तो हमारे प्रभुपाद जी एक शिष्य थे श्रीधर स्वामी महाराज, उनको जॉली स्वामी कहते थे, हमेशा जोक्स करते रहते थे, लेकिन वो हिंदी पढ़ने नहीं आती। बोले क्या है? तो उस समय प्रभुपाद के एक और शिष्य थे जिनका नाम था अमोघ लीला, है ना, वो हिंदी पढ़ना जानते थे। बोले क्या लिखा हुआ है? बोले इसमें लिखा है कीर्तन सागर। तो श्रीधर स्वामी महाराज बोला, ओ कृष्णा वांट्स अस टू डू कीर्तन। तो उन्होंने क्या कर दिया, जेल में कीर्तन करना शुरू कर दिया। और उस समय दोपहर का समय था, बोले राजभोग आरती का समय है ना। तो एक भक्त ने क्या किया, ऐसे खड़ा होकर आरती करने लगा, दीवार को अटल ला के, और बाकी सब यूं करने लगे, कीर्तन करने लगे। और सबने क्या किया, पूरा माहौल ऐसे बन गया, आरती हो रही है, एक ही वैसे पूरा आर्टिकल दिखा रहा है, यूं कर रहा है, फिर यूं कर रहा है, फिर यूं कर रहा है, पूरा आरती कर रहा है। और सब नाच रहे हैं, कोई ऐसे कर रहा है, नाच रहे हैं सब। तो बाहर पुलिस वाले पागल है, ये तो क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा वातावरण बन गया, वो जो पुलिस कांस्टेबल उस सेल में आया उसने पहले जूते बाहर उतारे और उसके बाद वो जूते जब अंदर आया तो वो एक व्यक्ति ऐसे आरती लेके आया। सब यूं करने लगे। फिर बोले क्या हो गया? तो ये दोपहर हो गई, पुलिस वाले हैरान, बोले दोपहर हो गई, खाना खाओ।
बोले हम खाना नहीं खाते, हम प्रसाद खाते हैं। बोले प्रसाद कहाँ से? मंदिर से मंगवाओ। तो मंदिर से प्रसाद आया। 15 लोग थे, लेकिन प्रसाद तो आता पूरा ड्रम आ गया, 50 लोगों का आ गया। तो इन्होंने भी पाया, सब पुलिस कांस्टेबल्स को भी खिलाया। सबके सब बड़े आराम से प्रसाद हो रहा है, चैंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, फेस्टिंग हो गया। अगले दिन सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा मंगल आरती, फिर श्रीमद् भागवतम क्लास हुआ, पुलिस वाले आके भी बैठे और ये चलता रहा। अब क्या करें, पूरे जेल को क्या बना दिया? मंदिर बना दिया। मॉर्निंग का प्रसाद आता था, फिर सब ये चलता था। धीरे धीरे एक एक करके सबकी बेल होती गई। 2 लोग रह गए, सिक्योरिटी गार्ड और महाबुद्धि प्रभु जो टेम्पल कमांडर थे। अब उनको दूसरे सेल में शिफ्ट कर दिया गया जहां आम लोग होते थे, लेकिन उन्होंने अपना मॉर्निंग प्रोग्राम कंटिन्यू किया, भागवतम क्लास देते थे। जो सिक्योरिटी गार्ड था वो बंगाली था और ये अमेरिकन थे, और बाकी जो बैठे थे वो सबको किसी को इंग्लिश आती नहीं थी, और इसको पता नहीं आधी इंग्लिश आती थी आधी हिंदी क्या आती थी। तो महाबुद्धि प्रभु इंग्लिश में बोलते थे, ये बंगाली चौकीदार ये ट्रांसलेट करता था टूटी फूटी हिंदी, और बाकी सब सुनते थे। तो ये करते करते धीरे धीरे महाबुद्धि प्रभु को भी बेल हो गई, क्योंकि इसके हाथ से रॉड थी, इसको शिफ्ट कर दिया मेन सिविल जेल में। लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड इतना शुद्ध हो गया, इसने भी मॉर्निंग प्रोग्राम कंटिन्यू किया, चैंटिंग कंटिन्यू किया। ये है ना कमाल की बात, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति हो, बहुत ही खतरनाक परिस्थिति भी क्यों ना हो, जब हरिनाम लेंगे ये हम उस परिस्थिति को शुभ बना देते हैं, है ना? जैसे हमारे किसी भक्त की मृत्यु होती है, किसी व्यक्ति को हम शमशान घाट में जाते हैं, उस समय हम क्या करते हैं? हरिनाम लेते हैं। तो एक बार हम हरिनाम ले रहे थे, ऐसे किसी एक अनजान व्यक्ति आया मेरे पास, बोले अपना नाम बताइए, फोन नंबर बताइए। मैंने क्या हो गया? बोले आपसे एक निवेदन है, जब मैं अपना शरीर छोड़ूं तब भी आके ऐसा कीर्तन करना। क्योंकि बोले इतना अच्छा आपने वातावरण बना दिया, ऐसी शमशान घाट जैसी स्थिति में भी हमें इतना अच्छा लग रहा आपका हरिनाम सुन के। ओके, तो ये हरिनाम के कुछ महत्व है। ओके, तो हरिनाम हमें जीवन का लक्ष्य प्रदान करता है, हरिनाम हमें असली आनंद प्रदान करता है, कृष्ण से हमारा संबंध स्थापित होता है। ठीक है, तो अब हरिनाम का जप कैसे करना चाहिए? हरिनाम को 2 तरीके से किया जाता है, एक होता है जप और एक होता है कीर्तन। जप होता है जब हम बिल्कुल सॉफ्टली और जेंटली बोलते हैं और सुनते हैं। जप करने से केवल हमारा लाभ होता है, लेकिन जब संकीर्तन करते हैं तो क्या होता है? सबका लाभ। जब जोर जोर से हरिनाम लेते हैं तो क्या होता है? पूरे वातावरण में जितने जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। ठीक है ना? तो सबके लिए ऑस्पिशियस है, सबको शुद्ध करने वाला है। लेकिन जब हम जप करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? हमारा मन हाँ, मन बहुत भागता है। हाँ, इंडिया तो वहीं रहती, मन धड़ 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 क्या क्या करता है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। और हरे कृष्णा बैकग्राउंड में चल रहा होता है, मन कहीं कहीं भाग रहा होता है। पूरी की पूरी प्रॉब्लम अपने ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, हरे कृष्णा। तो क्या होगा, कैसे करें इसको? तो सबसे पहला तो है घबराइए मत, कोई बात नहीं। मन का भटकना अपराध नहीं है, मन के साथ मैंने भटकना वो अपराध है। समझे बात? मन में तो वासनाएं हैं, वृत्तियां हैं, संस्कार हैं पुराने, मन बहुत चंचल है, मन भागता ही रहेगा इधर उधर, लेकिन हमने मन के साथ नहीं भागना। हम कुछ भी चीज शुरुआत करते हैं, मन शुरू में जरूर भटकता है, लेकिन जब एक बार आदत हो जाती है तो नहीं भटकता। यस, वेरी गुड। हम मतलब कौन है? हमने बोला मन भटकेगा लेकिन मैं नहीं भटकूंगा, तो मैं कौन हूं? आत्मा। वेरी गुड, वेरी गुड। आत्मा मन से सुपीरियर है कि मन आत्मा से सुपीरियर है? क्यों क्यों? और मन आत्मा की निकटतम पड़ोसी है, जो कि बुद्धि के कंट्रोल में रहनी चाहिए, ताकि नाम का संकीर्तन करके अपनी आत्मा को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सबने DOS अटेंड किया होगा। वेरी गुड। तो लेकिन फिर भी एक तो ये हो गया, लेकिन आत्मा मन से सुपीरियर क्यों है?
आत्मा आत्मा का कभी अंत वेरी कभी गुड। से, बट शरीर तो नश्वर है। मन 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 की बात, मन भी सर शरीर का ही हिस्सा है। सूक्ष्म शरीर है। वेरी गुड, वेरी गुड। मन भौतिक है, मन जड़ है, आत्मा चिन्मय है ना। मन तो मेरे हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है। मन एक इंस्ट्रूमेंट, मैं तो जीव, मैं मालिक हूं मन का। तो मन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, तो मेरे इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना आना चाहिए। हमें आता नहीं तो मन इंस्ट्रूमेंट हम पे हावी हुआ पड़ा है। ओके, तो मन तो भागेगा, लेकिन मैंने मन को भागने नहीं देना, मैंने मन को वापस लाना है। तो मन की तुलना एक बच्चे से की गई है। बच्चा बहुत चंचल होता है, मन ऐसा बच्चा है जो बहुत चंचल भी है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बल वितरणम तस्याहम निग्रहम मने वायु एवं सुदुष्करम। ऐसा बच्चा जो बहुत चंचल भी है, बहुत जिद्दी भी है, बहुत बलवान भी है। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो भगवान ने क्या बताया? असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो तरीके हैं मन को कंट्रोल करने के। क्या क्या? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब क्या है? फॉलोइंग सर्टेन डूज। और वैराग्य का मतलब क्या है? फॉलोइंग सर्टेन डोंट्स। बाय फॉलोइंग डूज एंड डोंट्स वी कैन इजीली कंट्रोल द माइंड। बस साइंस है। कौन कौन से डूज से हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? नाम जप। वेरी गुड। बोले नाम जप में ही मन भागता है, कोई बात नहीं। तो जब नाम जप में मन भागे तो मन में तरह तरह के विचार आएंगे, ये वो ऐसे ऐसे लोग याद आएंगे पहले कभी याद नहीं आते। यहाँ देखोगे उसे वहां से पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। ओके, लेकिन क्या करना चाहिए? उसको वापस लेकर आए, फिर वापस लेकर आए, फिर यतो निश्चलति मनो चंचलम अस्थिरम। जहां जहां मन जाता है उसको वापस पकड़ के लाए। जैसे बच्चा भागता है, माँ उसको फिर पकड़ के ले आती है, फिर बच्चा भागता है, फिर माँ को पकड़ के ले आती है। ओके, घबराना नहीं है। ये सक्सेस फार्मूला है फॉर योगा। Wherever मन runs, wanders, you bring it back, bring it back, bring it back. Okay? ये do। और दूसरा do क्या है? Association is very important. Association, like-minded लोगों के साथ। भक्तों का जितना संग करेंगे हमारा मन कम विचलित होगा। अगर हम असत संग करेंगे, ऐसे लोगों का संग करेंगे जो भक्ति में नहीं है, तो हमारा मन विचलित होगा। लेकिन आप तो कॉलेज में जाएंगे तो सब लोग तो चैंटिंग नहीं कर रहे, फिर क्या करेंगे? अपने आप को रिजर्व करो, आइसोलेट कैसे करेंगे? इकट्ठे प्रोजेक्ट्स करने हैं, सब कुछ इकट्ठा करना है, हैं? कैसे? वो तो आपका मजाक उड़ाएंगे, अरे बाबा बन गए, अरे यार क्या, अरे नाम ले रहे, क्या हो गया तेरे को? तो मजाक उड़ाएंगे आपका। अपनी इंद्रियों में कंट्रोल करने पर, लेकिन वो तो आपको प्रभावित करेंगे, आपसे बातचीत है। तो मन में जाप करते रहना चाहिए, अपना मन शांत। ना आसान नहीं है। आप क्लास अटेंड करोगे, जाप करोगे। गीता का अध्ययन करें। तो देखिए, संग का मतलब होता है प्रभावित होना। तो आप लोग बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना। उनको इन्फ्लुएंस करना है, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना। कैसे? जस्ट बिजनेस लाइक रिलेशनशिप। जितनी आवश्यकता है उतनी बातचीत करेंगे, पोलाइटली बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, जितना आवश्यक है उतना करेंगे। उससे ज्यादा मिक्स होंगे तो हम प्रभावित होंगे। ओके, सो फर्स्ट डू है चैंटिंग करना, सेकंड डूज है भक्तों का संग करना, और डोंट्स में आ गया अभक्त जो है उनका, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं, उनका संग नहीं करना। संग मीन्स गेटिंग इन्फ्लुएंस। और क्या डूज होने चाहिए? दूषित चीज नहीं देखना। हाँ, दूसरी चीज नहीं देखना, नहीं सुनना। स्मार्टफोन का, सोशल मीडिया का बड़ा जुडिशियस उपयोग करना। यू कैनॉट अवॉइड इट कंप्लीटली, बट है जो चीज उपयोग नहीं कर सकते नहीं करना। हाँ, बहुत ही जुडिशियसली इसका उपयोग करना, राइट। और क्या हमें चीज बचाएगा मन को कंट्रोल करने? रीडिंग बुक्स। उससे क्या फायदा होगा? सर ज्ञान आएगा, ज्ञान विवेक बढ़ेगा। यस यस यस, इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी, सो इंटेलिजेंस से हम मन को कंट्रोल कर पाएंगे। और क्या होगा? डेली डिसिप्लिन बनाना कि एक टाइम टेबल से करना। यस, रेगुलेशन। तामसिक भोजन। एक मिनट सब नोट कर। रेगुलेशन विल हेल्प।
यू नो, किस समय उठना है, किस समय सोना है, किस समय प्रसाद पाना है। जितना रेगुलेशन में रहेंगे हमारा मोड ऑफ गुडनेस बढ़ेगा, तो माइंड स्थिर होगा। और तामसिक भोजन को तामसिक भोजन से बचना है। यस, 4 नियमों का पालन करना, और पेशेंस रखेंगे। तो ये सब पेशेंस आएगा भक्तों के संग से। तो ये डूज एंड डोंट्स फॉलो करेंगे तो हम मन को नियंत्रण करना आसान होगा। फिर भी कोई दिक्कत है, मन भाग रहा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। भक्तों के संग में प्रैक्टिस करते करते हम एक दिन क्या कर लेंगे, मन को काबू में पूरा रूप से कर लेंगे। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या चर्चा की कि हरिनाम क्या है, हरिनाम का क्या महत्व है, हरिनाम को क्यों करना चाहिए, हरिनाम को कैसे करना चाहिए। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कराते हैं। जब हम हरिनाम करें, अच्छा हरिनाम का जप करने का मतलब है उसको सुनना, है ना। हमने कुछ इमेजिन नहीं करना, सुनना है। क्यों? ये साउंड वाइब्रेशन, ये शब्द ध्वनि साक्षात कृष्ण है। राइट, समझिए। तो अब सीधा बैठेंगे सब और बिल्कुल सुनने का प्रयास करेंगे। राइट, माला भी नहीं करेंगे अभी, अभी आप सीधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृपया एक एक शब्द को सुनने का प्रयास करें, बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली, और फोकस होकर जो आप बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसा लगा आपको, है ना? तो सुनने में और मदद मिलेगी अगर इस हरिनाम को हम हृदय से पुकारेंगे। तो हरिनाम लेने से पहले कुछ प्रार्थनाएं करनी चाहिए, अपनी चेतना को सेट, कॉन्शियसनेस को एडजस्ट करना चाहिए। क्या एडजस्ट करना चाहिए? मैं क्यों हरिनाम ले रहा हूं, हरिनाम का मतलब क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है, क्यों पुकार रहे हैं। आपका नाम क्या है? चंदन। मैं बोलूं चंदन चंदन चंदन, मैं क्यों पुकार रहे हो, बताइए क्या चाहिए मुझसे? संग क्यों चाहिए भाई, संग? हरिनाम क्यों पुकार रहे हैं? आनंद के लिए, अपना आनंद चाहिए तो मुझे पुकार रहे हैं। अच्छा, क्यों पुकार रहे हैं? तो समझिए कि जो है हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। ओके, हरे, हरे का मतलब क्या है? कैसे है राधा रानी हो? जब भगवान का एक नाम है हरि, हरि का मतलब होता है जो सारे हमारे दुखों को हर ले, जो हरि को भी हर ले वो है हारा, हरि को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले वो है हारा। वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो हारा को जब हम संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो कैसे बुलाते हैं? हरे। तो हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण सर्व आकर्षक, राम का मतलब है जो हमें परम आनंद प्रदान करे। तो हे कृष्ण, हे राधा रानी, आप मुझे अपनी सेवा दीजिए,
मुझे अपना प्रेम दीजिए, मुझे अपनी शरण दीजिए। मैं इस भौतिक संसार में फंस गया हूँ, बुरी आदतों में घिरा हुआ हूँ, मैं आपको भूल चुका था। अब मैं आपसे संबंध स्थापित करना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अपनी शरण दीजिए, मुझे अपना प्रेम दीजिए। ठीक है ना, यही भाव है ना। तो हरिनाम का जप करने से पहले अपने आप को इस मूड में लाना है। 2-3 मिनट रुक के प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं आपसे संबंध स्थापित करना चाहता हूँ, मैं आपको भूल गया था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मैंने आपके बारे में जाना है। मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। कितनी अच्छी प्रार्थना है ना। मैं आपकी सेवा में जुड़ना चाहता हूँ, मैं आपसे संबंध स्थापित करना चाहता हूँ। तो ये प्रार्थना के साथ हमने भगवान को पुकारना है। तो फिर हमारा सुनना और हमारा मन का भागना नहीं होगा। जैसे मैं अगर आपसे बातचीत कर रहा हूँ, किसी आप फ्रेंड के पास गए जिससे आपके रिलेशनशिप खराब हो गए थे और उस फ्रेंड से दोबारा से रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो कैसे आप बात करोगे? बहुत इंटेंसली बात करोगे ना, दोस्त क्षमा कर दो यार, कोई बात नहीं, आगे से अच्छा करेंगे, पूरी ध्यानपूर्वक बात करोगे ना। इसी ढंग से कृष्ण हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। हमने गलती की तो हम थोड़ा क्षमा मांग रहे हैं, अब आगे से नहीं करूंगा, अब आपसे अच्छा मैं संबंध रखूंगा। तो फिर सुनना भी आसान हो जाएगा, जप करना भी आसान हो जाएगा और हमें बहुत आनंद आएगा। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जप करने का अर्थ है मुख से बोलना, कान से सुनना, हृदय से रोना। क्या? से बोलना, कान से सुनना, हृदय से रोना। कैसे रोना? जैसे एक छोटा बच्चा माँ को पुकारता है। छोटा बच्चा होता है, वो बोल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, उसको माँ को कम्युनिकेट करने का एक ही तरीका है, क्या? रो के, बस जेन्युइन क्राई, माँ भाग के आती है। राइट, इसी ढंग से हम जितना ज्यादा जप करेंगे, जितना अच्छा शास्त्रों को पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, हमारे हृदय से वो पुकार निकलेगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? यस बाबू। आत्मा, हृदय और मन में अंतर क्या है? यस, वेरी गुड। आत्मा, हृदय और मन में अंतर क्या है? आत्मा तो मैं हूं, ठीक है ना, आत्मा एक जीव है, लेकिन शरीर में आत्मा कहीं पे है, वो हृदय के क्षेत्र में। ओके, जो मन है, मन और हृदय में कई बार मन बोलते हैं, कई बार हृदय बोलते हैं। ठीक है, तो हृदय वो स्थान है जहां आत्मा का निवास है। ओके, वहीं से सारे इमोशंस आते हैं हमारे। राइट, मन एक कवरिंग है, मन थॉट्स है, मन में थॉट्स हैं, डिजायर्स हैं, वो एक कवरिंग है उसमें। राइट, तो जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर के 3 भाग हैं, एक हमारा फॉल्स ईगो है, एक बुद्धि है और एक मन है। ठीक है, लेकिन इनसे भी एक सटल है जिसको बोलते हैं चित्त, जिसको आप हृदय कह सकते हैं, वो सबसे ज्यादा सटल है। ठीक है, तो वहां पे हमारे सारे इंप्रेशंस पड़े हुए हैं और बिल्कुल उसके साथ आत्मा रहती है। तो आत्मा के ऊपर कवरिंग, यहाँ पे हम डायग्राम बना के नहीं दिखा सकते कि यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो ये चीजें बहुत सटल है। ठीक है, तो आत्मा तो मैं खुद हूं, बाकी ये सब कवरिंग है। For new students who are coming for first time, Yeah. so we also have regular Discover Yourself session, Yeah. where we are elaborately discussing these topics also in 1 hour session. Yeah, so you can attend those sessions also. Good. For that, if you want. Yeah. Good. और कोई? Yes sir. जी, अच्छा संग या कैसे पहचाने उसको? Very good. बहुत बार धोखा भी खा जाता है उसको। Yeah. उसको कैसे? अच्छा संग वही होगा जो हमें कृष्ण के निकट ला रहा है, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ा रहा है, जिसके संग में आके हम ज्यादा उत्साहित होते हैं हरि नाम लेने के लिए, जिसके संग में आके हम ज्यादा उत्साहित होते हैं शास्त्रों को पढ़ने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, वो अच्छा संग है। और जो ये काम ना कराए वो संग ठीक नहीं। जैसे यहाँ पर आए, आपकी आदतें सुधर रही हैं, आपके विचार बदल रहे हैं, हाँ, तो ये अच्छा संग है। राइट, और कुछ? हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी गुड।
जीवन का उद्देश्य है कृष्ण से प्रेम करना। क्यों? क्यों जीवन का ये मुख्य उद्देश्य है? क्योंकि ये मेरी वास्तविक स्थिति है, मेरी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल नेचुरल पोजीशन ये। बिना प्रेम के मैं रह नहीं सकता, है ना। इस संसार में किसी न किसी से हम प्रेम करना चाहते हैं, इसीलिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर है ना। हमें सोचते हैं कि बिना गर्लफ्रेंड के मैं अधूरा हूँ, वो सोचते हैं बिना बॉयफ्रेंड के मैं अधूरे हूँ। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो भी जाता है, अधूरा स्क्वायर हो जाता है वो। ये बाद में शादी करते हैं, बच्चे भी अधूरा क्यूब हो जाता है, ये अधूरा रेस्ट पावर 4 हो जाता है। जब तक हम कृष्ण से कनेक्टेड नहीं होंगे, हम कंप्लीट नहीं होंगे। कंप्लीटनेस, पूर्णता तभी महसूस होगी जब हम अपने आप को कृष्ण से कनेक्ट करेंगे। समझे? करके कोशिश करके देख लीजिए। हम करके देखें, कई जन्मों से हमने कोशिश की, यही कोशिश कर रहे हैं। कनेक्शन कृष्ण से होगा तभी कंप्लीटनेस है, अदरवाइज इनकम्प्लीट। राइट? और कुछ? यस। क्या अपराध करते हैं जाने में? जैसे दिमाग इधर उधर भागना, कभी कभी माला लेकर उठते हैं, फोन देखने लग जाते हैं, मैसेज एडिटिंग से फोन देखने लग जाते हैं। आपके माला करते हुए किसी ने बुला लिया। हाँ, तो जैसे हम डूज एंड डोंट्स हमने चर्चा की थी, तो माला करते समय फोन मत देखें। अगर इतनी आदत है, फोन से इतना आकर्षण है, तो फोन को दूर रखें। माला करते समय फोन अलग, फोन को चार्जिंग पे लगा दो, मैं खुद चार्जिंग में चला जाऊँ। माला करके मैं भी चार्ज अप हो रहा हूँ, फोन भी चार्जिंग पे है, ठीक है। जब दोनों चार्ज होंगे फिर बात करेंगे आपस में। और मन इधर भटकना वो अपराध नहीं है, क्योंकि मन को वापस फिर ले आओगे। और कुछ इमरजेंसी हुई, किसी ने बुला लिया, तो इमरजेंसी है तो चले जाओ, है ना। उनको पता नहीं होगा शायद आप माला कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं प्रभु इमरजेंसी नहीं है तो मैं माला समाप्त करके फिर आता हूँ, ठीक है ना। यस प्रभु, सक्षम प्रभु। मेरे मन में हमेशा ये सवाल था कि एक तरफ हर पंथ जो भी वो होते कि हमें परमात्मा तरफ जमना चाहिए, या पर जब हमें वापस परमात्मा के पास जाना ही है तो परमात्मा हमें यहाँ भेजते क्यों? या क्या बात है। यस, ये सोचना चाहिए। परमात्मा नहीं भेजते, हम जिद करके यहाँ आ गए। छोटा बच्चा तो नहीं, जाना है जाना है जाना है ना। ऐसे उदाहरण देते हैं, छोटा बच्चा बोलता है कि पापा को मैंने गाड़ी चलानी है, कार चलाने दो। अब बेटा तुमने ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, छोटे बच्चे कैसे चलाओगे? मैंने चलानी है। तो पिताजी क्या करते हैं, उसको टॉय कार ला देते हैं, टॉय कार चलाओ। तो वो टॉय कार चलाते नहीं, पिताजी मालूम है बच्चा अभी अनजान है, टॉय कार भी नहीं चला पाएगा। पिताजी साथ साथ पीछे पीछे रहते हैं। कहीं हाईवे भी चला गया, सामने ट्रक आ रहा है, वो घबराएगा, पिताजी पीछे खड़े हैं बचाने के लिए। राइट? इसी ढंग से ये संसार हमारे लिए टॉय कार है। वैसे तो हम भगवान के धाम में हैं, भगवान के आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत 3 टाइम्स है। ये हमें इतना बड़ा लगता है, आध्यात्मिक जगत तो बहुत बड़ा है। तो उस आध्यात्मिक जगत में हमने भगवान से जिद की कि मैं भी आपकी तरह स्वतंत्र घूमना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं घूम सकते, करना है। जिद की तो यहाँ भेज दिया गया, ट्राई करके देख लो। तो साथ में फिर भगवान में वापस बुलाने के लिए क्या भेजते हैं? अच्छे गुरु को भेजते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, साधुओं को भेजते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं कि ये घर हमारा असली घर नहीं है, हमें वापस जाना है। राइट? ओके। ये मानव जीवन खत्म होने के बाद वापस मिलता है, मानव जीवन चल रहा है, उसके बाद वापस। हाँ, निर्भर करता है कि क्या कार्य किए। अगर खुशी की बात है, आपने हरि नाम शुरू कर दिया है, तो आपका मानव जीवन एश्योर्ड है। जैसे भक्ति में थोड़ी सी भी प्रगति कर ली है, भगवान गीता में कहते हैं स्वल्प से धर्म से त्रायते महतो भयात्, उसकी बड़े से बड़े भय से रक्षा करूंगा, यानी कि उसको निम्न योनि में नहीं गिरने दूंगा। लेकिन इसका मतलब चलो ठीक है जी, ये तो काम पक्का हो गया, अब छोड़ो। नहीं, हमें क्या करना है कि हमें कोई भी योनि प्राप्त ना हो, सीधा भगवान के साथ भगवान के धाम में जाए, ये प्रयास करना चाहिए, है ना। लेकिन भक्ति का इतना लाभ तो है, अगर हम पूर्ण रूप से कर भी नहीं पाए तो मनुष्य जीवन तो आगे एश्योर्ड है। राइट? ओके। यस। हम लोग जैसे एज अ स्टूडेंट वी आर ट्राइंग टू बैलेंस स्पिरिचुअलिटी और अपना करियर को, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें गलत डिसीजन बहुत मोहित, या जिसको बोलते हैं ना अपलक्ष्मी, या गलत
कामों से भी पैसा आ सकता है। और समाज भी आजकल इस तरीके से हो चुका है कि बहुत मतलब समाज भी चलता है। हाँ चलता है, इनफैक्ट अप्रिशिएट करते हैं। या तो उसमें फिर अपने आप को सेल्फ डाउट होने लगता है कि मैं इतना अच्छा क्यों बना, क्योंकि सारे लोग जो है सब फिर वही बोले कि अरे तुम एट द एंड ऑफ द डे कर ही लेते, इतना अच्छा बनने का तो क्या। यस, अच्छा क्वेश्चन है। तो ठीक बात है। देखिए, धन कमाना आवश्यक है, बिना धन के हमारी गति नहीं है। सारा घर चलाना है, परिवार को पालना, धन कमाना आवश्यक है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि जितना ईमानदारी से कमा सके। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत ढंग से कमाते हैं धन, तो हमारे चित्त पे, मन पे गलत छाप छपती है, गलत छाप छपती है। और हम किसी का बुरा करके जैसे धन कमाते हैं, तो फिर कर्मों का रिएक्शन है। लोग जानते नहीं है कि अगला भी जन्म होता है। लोग बहुत शॉर्ट साइटेड हैं, खाली इसी जन्म के बारे में सोचते हैं। उनको डील दी जाए, अभी आपको 50 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, लेकिन अगली डील के अगले जन्म में कुत्ता बनना है, वो साइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, बनने दो कुत्ता, क्या फर्क पड़ता है, किसने देखा अगला जन्म, अभी तो ऐश करो। लोगों का ये मानसिकता है। लेकिन भक्ति में आने के बाद हम जानते हैं शास्त्रों की बातों को, ये शरीर तो नश्वर है, और मन आत्मा को दूसरे शरीर में ले जाएगा। कैसे? जैसे कर्म किए। तो इस प्रकार से हमें सावधान रहना चाहिए। हालांकि संसार में ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो, तो कुछ तो चलता है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल 100% सत्य है। यहाँ पे संसार पूरा झूठ से ही भरा हुआ है। थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन बहुत बड़ी बेईमानी, धोखेबाजी से बचना चाहिए। ठीक है ना? तो आप अपने मेंटर जो होंगे, जो हमारे गाइड होते हैं, उनके गाइडेंस में हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, सो स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और हम सब ने हरि नाम की महिमा जानी, और अब आप ठीक है, ओके।